ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو، یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد، کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ سب سے پہلے آپ اس کو بولیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے، بولیں گے، آپ قبول نہیں کریں گے اس کو، بول دیجیے آپ کہ ہم یہ کھاتے نہیں، بولنا لہٰذا جو کھاتا ہے اس کو دے دی زیادہ اچھا ہے، ہم لوگ نہیں کھاتے، نہیں فاتحہ یہ سب نہیں کرتے۔ 11ویں شریف کا ختم دلوانا چاہیے، خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ یہ کہاں سے نکالی آپ نے 11ویں شریف؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے ہے۔ کب پیدا ہوا امام عبد القادر جیلانی؟ تو نئی شریعت بنے گی۔ 11ویں کرنا جائز نہیں، شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ چاہے تم نہ کڑوی لگتی رنگا بات، جا کو تحقیق کرو، تحقیق کرو، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لیے بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیگ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے، حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے، نہیں کھانا، پھینک دیجئے۔ السلام علیکم دوستوں، مفتی سلمان اظہری کا یہ بیان ہمیں اور آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ جو وہابی اور دیوبندی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ 11ویں شریف کرنا جائز نہیں، ان کے نام کی نیاز دلانا جائز نہیں، تو وہابی اور دیوبندی سے اپنے ایمان کو بچاؤ اور غوث پاک کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ ہم دنیا کے تمام سنی عالم دین کے بیان کو آپ تک لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اور آپ کو دین کی معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ دوستوں، یہ بیان پورا سنیں مفتی سلمان اظہری کا اور 11ویں شریف کرنا شروع کر دیں۔ ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے۔ خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی بھگائی ہے، یہ جملے بازی ہے۔ ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں۔ اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا، کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء کرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں، جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں۔ بہرحال، لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی۔ دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ مرید سے پوچھا، پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا، اس عورت نے شادی کی، برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکی۔ مشہور کرامت ہے غوث پاک کی۔ تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم، تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے، مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے۔ غوث پاک کی دعا چل رہی تھی، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا، پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی۔ غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا دی، پوری برات واپس آ گئی، اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے۔ 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو، راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا۔ ہر عقل کے اندھو، جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے،
तुम 1000 बार जला कर राख कर दो, रब्बे जुल जलाल कादिर मुतलक है, वो दोबारा जिंदा फरमाएगा हिसाब लेने के लिए। तो कश्ती दोबारा वापस आई। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामत पर एक दो नहीं हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। अब जो साहब हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हर जगह अगर तुम अकल के घोड़े दौड़ाओगे तो यही सवाल करोगे ऐसा कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारी अकल में बात नहीं आती तो समझ लो उसी को करामत कहते हैं, उसी को करामत कहते हैं। तुम और हम भी कर सकते थे तो फिर गौस की करामत का मतलब ही क्या है। तुम भी गौस होते, हम भी गौस होते। करामत है जो अकल में नहीं आएगी। और कुरान से अगर दलील मांगते हो, सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक बार ऐलान किया था, कौन है जो सबा बल्कीस का तख्त यहां पर ले आएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में बैठे हुए हैं और सबा बल्कीस का तख्त यमन में है। यमन और फिलिस्तीन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। एक जिन खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मैं ले आता हूं। पूछा कितनी देर में, कहा मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले वो लेकर आ जाऊंगा। जिन्नात की ताकत पर यकीन रखने वाले, जिन्नात को हासिल करने के लिए अमलियात करने वाले, सुनो कुरान क्या कहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत देर हो जाएगी, मजलिस खत्म होने तक तुम लाओगे, मजलिस खत्म होने तक। फिर अल्लाह के एक वली जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, आसिफ बिन बरखिया, खड़े होते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के नबी मैं ले आऊंगा। पूछा कितनी देर में, कहा आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा। आपकी, ये कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के। और अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, इससे पहले कि आपकी आंख की पलक झपके ए अल्लाह के नबी मैं वो तख्त ले आऊंगा। तख्त कोई 4 फीट का 5 फीट का नहीं, 80 गज लंबा है और उतना ही चौड़ा है, उतना ही वजनी है और 7 दरवाजों के अंदर बंद करके रखा हुआ है। सोने चांदी जवाहरात से जुड़ा हुआ तख्त है। और एक इंसान कहता है, इंसान, जिन्नात की बात नहीं कर रहा, जिन्नात की बात आएगी तो आप समझेंगे उनको बड़ी ताकत होती है। इंसान की बात कर रहा हूं। इंसान ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ बात नहीं थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी पलक कर इधर देख रहे थे, वो तख्त हाजिर कर चुके थे, तख्त हाजिर कर चुके थे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी थे, खुद अल्लाह के नबी। अरे वो चाहते तो खुद ही तख्त को तलब कर लेते। इस कुरान के वाक़े का मतलब मुझे ये समझ में आता है, अल्लाह के नबी ने दुनिया को ये बताना चाहिए जो नबी के कदमों में बैठता है उसकी ताकत का ये है। नबी की ताकत तो बहुत दूर। और ये भी बनी इसराइल के नबी, बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके उम्मती की ताकत का हाल ये है। तो फिर सैयदुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी उम्मत के आम औलिया की बात नहीं कर रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका वली की गर्दन पर है, वो 12 साल की कश्ती वापस ले आए तो ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि हम समझते हैं कुरान इस करामत को बिल्कुल ऐनी तौर पर बयान कर रहा है। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया की या दुनिया के नक्शे कदम पर चलने वाले, हर चीज को थ्योरी और प्रैक्टिकल पर आजमाने वाले और साइंस की दुनिया में चलने वाले, उनको कहता हूं आइंस्टाइन ने कहा है। आइंस्टाइन का नाम तो बहुत लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, उसकी तस्वीर भी पढ़ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक की तस्वीर पढ़ते हैं। अब उसी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं जिसने ये कहा है कि मैंने कायनात को देखने की कोशिश की। सुनो, कायनात को देखने की कोशिश की और चांद तक और सूरज तक और बहुत सारे मकामात तक देखने की रसाई हासिल कर लिया। और उसने कहा कायनात का जो किनारा, एक किनारा मैंने देखा, उसके लिए वो कहता है 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे। 2 करोड़ नूरी साल। नूरी साल किसको कहते हैं पता है? ये जो साल हमारे चल रहे हैं, ये साल सुबह होती है 6 बजे सुबह हुई, शाम में 6 बजे सूरज डूबा, आराम से दिन चल रहे हैं। नूरी साल इसको नहीं कहते। नूरी साल 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर करता है। 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है नूरी साल में। उस तरह 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट की, उस तरह के 2 करोड़ साल लग जाएंगे कायनात को देखने के लिए। ये कौन कह रहा है?
आइंस्टाइन कह रहा है, जिसके पीछे तुम लोग आगे पीछे जिसको किबला बनाते हो, सुनो, 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे कायनात के किनारे देखने के लिए, कायनात की सारी चीजें देखने के लिए। और आओ शहंशाह बगदाद के दरबार में, कहते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह की पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता हूं। तुम्हारे सारे आले, तुम्हारे सारे कंप्यूटर 2 करोड़ साल में भी वहां नहीं पहुंच सकते जब शहंशाह बगदाद की एक निगाह पहुंचती है। हाँ, मेरे गौस ने फरमाया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के पूरे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीजान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत ने ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इसी निस्बत पर फख्र करते हैं। देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं, 55 उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम्मा अता की है और बहुत सारे शागिर्दों की खेत तैयार की है। उम्मत पर एक बहुत बड़ा उम्मतियों पर एहसान है, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पर। कुरान का तर्जुमा किया है, फतावा रज़विया शरीफ है, बारगाह मुस्तफा में हदायत बख्शिश है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, आला हजरत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं फतावा रज़विया लेके आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर के आया हूं, मैं हदायत बख्शिश लेके आया हूं, बल्कि आला हजरत ये कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बत के लिए भी बारगाह मुस्तफा में आला हजरत ने अगर किसी बात पर फख्र किया है तो गौसियत की निस्बत पर फख्र किया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यकीनन मेरे अजीजों करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत मआब शहंशाह बगदाद पीर पीरा अमीर मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहां पर मुलाकात जिनसे हुई, वो अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में तकरीबन 55 साल से, और बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूँ किस लिए मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ न कुछ देकर भेजते हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा यहाँ पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत यही फरमाते हैं जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, हाँ नहीं ले जाते, और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? यह अलामत है कि किसी का पाला हुआ है, और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात ये भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने